નમસ્કાર. સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનની આજની ગુરુવારી મીટિંગમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આપણે એવા સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ અને આ સમય 2 વર્ષ 2020 અને 2021નો કોરોના કાળનો સમય, અને કોરોના કાળમાં આપણે પણ સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલને પણ સોશિયલ મીડિયાનો સહારો લીધો બધા સુધી પહોંચવા માટે. અને આ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ આપણા દેશમાં 2000ના વર્ષમાં પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, પણ એના નિયમો, કાયદો પહેલા ઘડાય અને પછી એને નિયમો જ્યારે ઘડાય ત્યારે એનો સાચો અમલ શરૂ થાય. અને આપણે બધાએ 2 વર્ષથી જોયું છે કે આપણે આપણી લાગણીઓને, આપણી સંવેદનાઓને, આપણા વિરોધને, આપણા સમર્થનને આ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એકબીજા સુધી પહોંચાડ્યું છે. કોઈએ કવિતા લખીને, કોઈએ કાર્ટૂન દોરીને, કોઈએ ગીત ગાઈને, કોઈએ નાટકનો પાઠ કરીને, કોઈએ વાચિકમથી, કોઈએ આંગિકમથી, કોઈએ નૃત્યથી, એવી જુદી જુદી રીતે સોશિયલ મીડિયાના સહારે પોતાની લાગણીઓને લોકશાહી ઢબે વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં ઓનલાઈન પ્રોટેસ્ટ પણ છે, ઓનલાઈન સપોર્ટ પણ છે. બ્લેક લાઇવ્સ મેટર હોય કે કોઈ પણ પ્રકારની ચળવળ હોય, પેલેસ્ટાઇનનો સંઘર્ષ હોય, એ બધાને લઈને દેશમાં પણ જે ચળવળો ચાલી રહી છે, લોકોના અધિકાર માટે, કિસાન આંદોલન હોય કે પછી એ પહેલા સીએ એનઆરસી નું આંદોલન હોય, એ બધામાં આપણે આપણી વાતને લોકશાહી ઢબે આ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા રજૂ કરવાની કોશિશ કરી છે. એવું કહી શકાય કે આજે સોશિયલ મીડિયા વગર આપણને કોઈને ચાલતું નથી. સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ આપણે માટે અનિવાર્ય બની ગયો છે. અને ભારત દેશની જે વસ્તી છે, એનું જે પ્રમાણ છે દુનિયામાં, એના કારણે સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓ પણ એમને એક મોટો ગ્રાહક વર્ગ પણ મળ્યો છે. અને આપણી આજે એની ઉપયોગિતા જે વધતી જાય છે આપણા જીવનમાં, એવા સમયે આ સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગને અથવા તો સોશિયલ મીડિયાની પદ્ધતિને અથવા એની કામગીરીને કોઈને કોઈ રીતે નિયંત્રિત કરવા માટે ભારત સરકાર જાણે કે તત્પર હોય એ રીતે હમણાં એના નિયમો ઘડાયા. અને નિયમો ઘડાયા એ પછી વોટ્સએપ, જે આપણું બહુ જાણીતું સોશિયલ મીડિયા એપ છે, આપણે બધા વાપરીએ છીએ, અને એને એની સામે કોર્ટમાં અરજી પણ કરી. હવે આ સમય જે છે એમાં એક બાજુ દેશમાં દેશદ્રોહનો જે કાયદો છે, જે અંગ્રેજ સામ્રાજ્યવાદ વખતે ઘડાયો છે, એ કાયદો અનેક લોકો ઉપર લગાડવામાં આવ્યો, ત્યાં સુધી કે હાથરસમાં ભયંકર ગેંગરેપની ઘટના બની હતી, એ ઘટનાના રિપોર્ટિંગ માટે જતા પત્રકાર ઉપર પણ લગાવવામાં આવ્યો. ત્યાં સુધી કે તેલંગાણામાં એક એમપીએ પોતે એ સરકાર વિરોધી વાત કરી, તો એ સરકાર વિરોધી વાતને જે ચેનલોએ પ્રસારિત કરી, એમની સામે એ કાયદો લગાડવામાં આવ્યો. હમણાં જ આપણા દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું છે કે આ દેશદ્રોહ શબ્દ છે એ એમને વ્યાખ્યાયિત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. એવા સમયે કેન્દ્ર સરકારે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટના નિયમો જે ઘડ્યા છે, એ આપણા બધા માટે, આપણો જે રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી, આપણા દેશના બંધારણમાં આપણને અનેક અધિકાર આપવામાં આવ્યા છે, અને 2 મૂળભૂત અધિકારો અત્યારે સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે, એ રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી અને રાઇટ ટુ એક્સપ્રેશન. એટલે ફ્રીડમ ઓફ એક્સપ્રેશન અને રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી, એ બંનેના સંદર્ભમાં, અને જ્યારે આ ડિજિટલ આપણી ડિપેન્ડન્સી વધી રહી છે, એને વિશે વિગતથી વાત કરવાનો એક સમય આવી ગયો છે. અને એટલે જ આજે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનની આ ગુરુવારી મીટિંગમાં આ વિષયની ચર્ચા આપણી વચ્ચે પ્રોફેસર હેમંતકુમારભાઈ શાહ કરવાના છે. હેમંતભાઈને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ લાંબા સમયથી. એમનું જે હોય છે લોકતરફી વલણ દરેક કાયદાના મૂલ્યાંકનને, એનું અર્થઘટન કરવામાં, એને કારણે હેમંતભાઈ આજે આપણી વચ્ચે રજૂઆત करશે. हम लोग चाहते थे कि वो उनका डिस्कशन हिंदी में रखा जाए, पर मुश्किल है, जो कानून है उसके जो तकनीकी टेक्निकल सब टर्मिनोलॉजी है, उसका हिंदी अभी भी इतना पॉपुलर या नहीं हुआ है, इसलिए वो बात तो रखेंगे गुजराती में. पर मुझे लगता है कि वो आप सब्जेक्ट जानते होंगे तो समझ पाएंगे, तो आज वो गुजराती में ही बात को रखेंगे. पर हम सब लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज बैरियर होगा. तो मैं अभी रिक्वेस्ट करती हूँ प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह को डिजिटल एनस्लेवमेंट एंड राइट टू प्राइवेसी, उसके बारे में
मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की थर्सडे मीटिंग में बताने के लिए प्रोफेसर हेमंत कुमार भाई शाह। सेकुलर डेमोक्रेसी ने मुझे आप सबसे आज इस विषय के बारे में बातचीत करने का जो मौका दिया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। चूंकि ये विषय जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इसमें ज्यादा हिंदी टर्मिनोलॉजी मुझे ज्यादा आती नहीं है, इसलिए मैं गुजराती में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं, ये पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जिस विषय के बारे में आज बात करनी है, उस विषय में जो कुछ भी अभी हुआ है, वो जहां तक मैं समझा हूं, वो आप सबके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंतिम 7 सालों में भारत सरकार ने जिस प्रकार का रवैया हमारी आजादी को, नागरिक की आजादी को दबाने का या उसको दबोच कर मार डालने का जो प्रयास किया है, जो कोशिश की है, वो कोशिश हम सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी कोशिश की वजह से हमें यह संशय पैदा होता है कि जो आज नए नियम आए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, वो नियम क्या हमारी जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाणी और अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसको क्या खतरे में डालेंगे? ये संशय इसलिए पैदा होता है कि अंतिम 7 सालों में इनका जो रवैया रहा है सरकार का और सरकारी संस्थाओं को जिस प्रकार से उपयोग में लाया गया है, इसकी वजह से ये संशय पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। तो इस बैकग्राउंड को देखते हुए हम इस विषय के बारे में अपनी चर्चा रखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में लाया गया और इसके तहत और इसके खिलाफ दिल्ली की जो हाईकोर्ट है, उसमें एक अर्जी व्हाट्सएप कंपनी ने की है। हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप कंपनी आजकल फेसबुक की कंपनी है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। ये जो नियम लाए गए हैं, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये नए नियम आए और इसको लागू किया गया 25 तारीख को, 25 फरवरी 2021 को। वैसे तो इसको लागू किया गया था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ क्योंकि वो एक नोटिफाई कर दिया गया और फिर ये कहा गया कि इसमें कुछ सुधार करने के लिए कोई सूचन वगैरह हो, कोई सजेशंस हो तो वो दे सकते हैं। लेकिन बाद में अभी जो 3 महीने के बाद 26 मई को इसको अमल में लाया गया है और इसी की वजह से व्हाट्सएप ने दिल्ली की जो हाईकोर्ट है उसमें अपनी पिटीशन की है और ये कहा है कि ये जो नियम है, इसकी वजह से व्यक्ति की जो आजादी है, वो आजादी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए इस नियमों को रद्द किया जाए या वे हमारे संविधान में जो प्रावधान है, उस संविधान के प्रावधान को वो खत्म करता है, इसलिए इसे खत्म किया जाए। ये जो नियम आए हैं, इसके पहले 2011 में भी नियम लाए गए थे। उसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल्स। ये 2011 के जो रूल्स थे, इसको रिप्लेस करके, इस नया बना के 2021 के ये नियम लाए गए हैं।
व्हाट्सएप ने जो पिटीशन की है इसमें ये कहा गया है कि भारत के नागरिक की जो व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जिसे कहते हैं, इसका उल्लंघन हो रहा है इन नियमों की वजह से। व्हाट्सएप ने अपनी पिटीशन में ये भी कहा है कि ये सरकार की एक डेंजरस इन्वेजन है, ये एक भयानक घूस है इंडिविजुअल प्राइवेसी में, और वह जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। व्हाट्सएप का ये मानना है कि ये जो नियम है वो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार, उसका भी वो उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा व्हाट्सएप ने कहा है। हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें सबसे ज्यादा में व्हाट्सएप का नंबर है। करीब 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप के यूजर्स हैं। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में नागरिकों के जो मूलभूत मानव अधिकार है, जिसे हमें अपने संविधान में लिखा है, इनके अधिकारों के लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उन्हीं के लिए ये समस्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप के सिवा भी जितने सोशल मीडिया है वो सारे सोशल मीडिया के यूजर्स के लिए, मतलब मेरे और आप जैसे कोई भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो सिग्नल हो, ऐसे कोई भी सोशल मीडिया का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो आपके अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रावधान या उसका खतरा इन रूल्स में लाया गया है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर आज एक नागरिक के हिसाब से मेरे अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, अगर आप चुप बैठेंगे तो कल शायद आपका भी नंबर लग सकता है, आपका भी क्रम आ सकता है। इसलिए कहीं भी किसी के भी नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हर एक व्यक्ति के लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आश्चर्यजनक और आघात पैदा करने वाली बात है कि मोदी सरकार के जो कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जब ये व्हाट्सएप कंपनी ने दिल्ली की हाईकोर्ट में केस किया और कहा कि ये कानून, ये जो नियम है वो रद्द होने चाहिए क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के जो अधिकार है उसको संकुचित करते हैं या इसमें बाधा डालते हैं, तो रविशंकर प्रसाद ने ये कहा कि इट्स एन एक्ट ऑफ डिफायंस। अब एक्ट ऑफ डिफायंस का मतलब ये होता है कि आप जो कार्य किया है, मतलब आपने जो हाईकोर्ट में पिटीशन की है वो एक्ट ऑफ डिफायंस है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने भारत देश को युद्ध के लिए आह्वान किया है, या आपने क्या कहे म्यूटिनी किया है, मतलब आप जिसे गुजराती में कहते हैं बड़वाखोर कृत्य। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसने स्टेट के सामने एक म्यूटिनी खड़ा कर दिया है। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी जुट गट या कोई भी समूह या संस्था या कंपनी, जिसे भी ये लगे
कि हमारे संविधान में जो नागरिक के मूलभूत अधिकार लिखे हुए हैं वो अगर खतरे में है तो मैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं और ये जो कोर्ट है उसको मैं ये कह सकता हूं, अदालत को ये कह सकता हूं कि आप मेरे अधिकारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि ये जो राज्य है, ये जो सरकार है, वो मेरे अधिकारों की रक्षा करने के बजाय वो मेरे अधिकारों को मुझसे छीन रही है। ऐसा करना हमारा भी अधिकार है। ये अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल 32 में लिखा गया है, जिसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे लगता है कि ये जो संविधान का भाग 3 है उसमें जो भी अधिकार लिखे गए हैं, अगर इसको मुझे रक्षित करना है, मेरे लिए इसका रक्षण करना है, तो मैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं। अगर ये जाना ही खुद सरकार के सामने युद्ध हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये मोदी सरकार के जो कानून प्रधान है रविशंकर प्रसाद, वो मुझे लगता है कि बौखला गए, उनको समझ में नहीं आ रहा। वो कानून निष्णात है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, लेकिन सरकार के नियमों के खिलाफ कोई जाए उसे आप युद्ध के समान बात करें, ये तो मुझे लगता है कि ये खुद ही एक हमारे अधिकारों के उल्लंघन के समान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं चुनौती दे सकता हूं सरकार को एक नागरिक के तौर पर। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और वो कभी भी युद्ध का आह्वान नहीं हो सकता। या मैं एक सरकार को फेंक देने के लिए या इंडियन स्टेट के लिए कोई खतरा पैदा करने के लिए ये सब कर रहा हूं, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार जो नागरिकों के अधिकारों पर जो धावा बोल रही है, जो हमला कर रही है, इसी का एक हिस्सा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ही खुद सरकार का या बीजेपी का या आरएसएस का एक एजेंडा है। हमेशा वो जब अधिकारों की बात करने वाले लोग अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, तब उन्हें देशद्रोही कहा जाता है आप चले जाइए पाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो ये जो उनकी मानसिकता है, मूलभूत मानसिकता है, उसी को ये व्यक्त करता है। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी बताती है मोदी सरकार की अंतिम 7 सालों में। तो इस तरीके से ही ये जो नए नियम आए हैं 2021 के, उसको हमें देखना चाहिए। ये जो नए नियम आए हैं उसमें नियम 4(2) सबसे महत्व का नियम है। व्हाट्सएप की ये दलील है कि ये जो नियम 4(2) है वो व्हाट्सएप में जो एंक्रिप्शन है उसको तोड़ डालेगा। हम सब जानते हैं जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उसमें ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, आपका मैसेज या आपका वीडियो या आपकी फोटो वगैरह। मतलब वो व्हाट्सएप खुद भी नहीं देखता। व्हाट्सएप का एंक्रिप्शन ही ऐसा है कि व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजने वाली व्यक्ति है और मैसेज प्राप्त करने वाली जो व्यक्ति है वही उसे देख सकते हैं या सुन सकते हैं। अगर ये एन्क्रिप्शन टूट जाएगा, इसका मतलब यह है कि सरकार जब व्हाट्सएप को ये कहेगी कि मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो ने जो मैसेज भेजा है वो मैसेज हमें दो,
कब भेजा, कौन सी तारीख को भेजा, और वो ओरिजिनली किसने भेजा। मतलब मैं आपको एक मैसेज भेजता हूं, ठीक है, आप उस मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, कई जगह फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो फैल रहा है। सरकार के पास भी ये मैसेज जाता है किसी न किसी तरीके से, कोई भेजने वाला है या कोई देखने वाला है, उसे लगता है कि ये मैसेज सरकार के खिलाफ है। वो देशद्रोही मैसेज नहीं है, एक्ट ऑफ डिफायंस नहीं है, लेकिन सरकार को यह लगता है कि ये सरकार के खिलाफ है। तो सरकार फिर व्हाट्सएप को बताएगी कि ये ओरिजिनली किसने ये मैसेज भेजा है। मतलब आप ढूंढ निकालो कि ये जो 5 लाख लोगों को या 5 करोड़ लोगों को जो मैसेज गया है, वो सबसे पहला कहां, किसने इसका निर्माण किया और पहली बार किसने इसको भेजा। अब वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप को ये जो एंड टू एंड एंक्रिप्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट्सएप सभी मैसेजेस को पढ़ेगी जो आज नहीं पढ़ रही। और इसीलिए व्हाट्सएप का ये कहना है कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है, गोपनीयता का अधिकार है, व्यक्तिगत गोपनीयता का जो अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है। ये जो नियम 4(2) है उसका मतलब हम जरा ठीक तरीके से समझें। पहला मतलब यह है कि कोई भी मैसेज पहली बार जिसने भेजा है उसको आइडेंटिफाई करके, उसका नाम पता वगैरह प्राप्त करके व्हाट्सएप या ऐसी कोई भी कंपनी, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, सिग्नल हो या और कोई कंपनी हो, वो कोई भी कंपनी सरकार को उसकी सूचना देगी। ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए ये सारे सोशल मीडिया को कौन कहेगा, तो इसमें 2 बात है। 2009 के नियम है, 2009 के नियम है। इसी एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत 2009 में और रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स। इन नियमों में नियम 69 नियम में कौन ये हुक्म करेगा, इसके ऑफिशियल लिखे गए हैं कि ये ऑर्डर कर सकता है किसको, व्हाट्सएप को या सोशल मीडिया को, कि आप ये जो मैसेज आया है इसका ओरिजिनेटर मतलब नंबर 1 पर्सन की जिसने ये भेजा है उसका नाम हमें बताइए। ये एक बात। दूसरी बात, कौन कर सकता है हुक्म, ऐसा ऑर्डर कौन कर सकता है, तो क्या कोई भी कोर्ट कर सकती है। अच्छा, कोर्ट ना करे तो इसमें और लिखा हुआ है, अथवा लिखा है OR, मतलब कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं करती है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा ऑर्डर करेगा। मतलब ये हो गया कि सरकार कोर्ट करे कि ना करे, सरकार के कोई भी ऑफिशियल ऐसा ऑर्डर सोशल मीडिया को कर सकती है कि ये जो मैसेज है वो मैसेज पहली बार किसने भेजा है, और वो कंपनी को इसका नाम सरकार को देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट कोर्ट में जाए, कोर्ट को पिटीशन दे और फिर कोर्ट कंपनी को ऑर्डर दे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी अधिकारी खुद ये ऑर्डर व्हाट्सएप या किसी और कंपनी को दे सकता है कि आप ओरिजिनेटर का नाम हमें दीजिए। ये पहली बात। दूसरी बात,
जिससे पहली बार जो मैसेज भेज रहा है वो व्यक्ति ओरिजिनेटर कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार कुछ भी कर सकती है उस आदमी के साथ, इसके सामने देशद्रोह का केस लगा देगी। ये अच्छी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया हुआ है कि हम सेडिशन लॉ के बारे में सोचेंगे कि क्या ये सेडिशन लॉ जो संवैधानिक मूलभूत अधिकार है इसके खिलाफ जाता है कि नहीं जाता। बहुत अच्छी बात है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। लेकिन हमें ये जरा सोचना चाहिए कि हमारे संविधान में ये जो पार्ट 3 में मूलभूत अधिकार लिखे गए हैं, इसमें आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार, उस अधिकार में 19(2) में, मतलब 19(1) में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मेकिंग अ यूनियन और एसोसिएशन, ये सारे अधिकार इसमें लिखे गए हैं। लेकिन उसके सेकंड पैरा में ये लिखा गया कि ये जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। सच्ची बात है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। मैं अगर आपको गाली दूं और फिर मैं ये कहूं कि मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच बरतने का, उसको एंजॉय करने का कोई तरीका नहीं है। तो आर्टिकल 19(2) भारतीय संविधान में ये कहता है कि ये जो 19(1) में हमें फ्रीडम दिए गए हैं वो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। वो कौन सा रिस्ट्रिक्शन है? तो वो कहते हैं कि आपके ये जो अधिकार है वो अधिकार भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। राज्य की सलामती के सामने, राज्य की सिक्योरिटी के सामने वो खतरा पैदा करना नहीं चाहिए। भारत के अन्य देशों के साथ जो संबंध है वो आपकी स्वतंत्रता की वजह से बिगड़ने नहीं चाहिए। ये जो पब्लिक ऑर्डर है, मतलब जो लोक व्यवस्था है, शांतिमय व्यवस्था है, उसको खतरे में नहीं डालनी चाहिए आपकी स्वतंत्रता। ये सारी बातें, या तो फिर कोई गुनाह करने के लिए आपको उत्तेजित करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें इसमें लिखी है आर्टिकल 19(2) में। अब यहां यह भी लिखा गया, इस नियमों में यह भी लिखा गया कि कोई सेक्सुअल मटेरियल, रेप या सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, इसके साथ संबंधित ऐसी मटेरियल कि जिसकी वजह से 5 साल से कम जेल की सजा ना हो, ऐसा गुनाह बनता है, ऐसी कोई बातें भी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो इसको, इस गुनाह को पकड़ने के लिए, इसे रोकने के लिए, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, या इसके सामने कोई शिकायत करने के लिए, या इसको जो जिसने ये काम किया है उसको सजा दिलवाने के लिए ऐसी सूचना सरकार किसी भी सोशल मीडिया से मांग सकती है। मतलब कि ये जो पहली बार जिसने मैसेज भेजा है उसका नाम वो किस लिए जानना चाहती है, तो ये सारी बातें हैं। भारत की एकता और अखंडता के सामने कोई जोखिम है, कोई स्टेट की सिक्योरिटी के सामने कोई खतरा है, या अन्य देशों के साथ हमारे जो रिलेशंस है वो बिगड़ते जा रहे हैं या बिगड़ सकते हैं, या पब्लिक ऑर्डर को जोखिम है, या जो मैंने बातें कही इसमें कोई आप इंसाइटमेंट कर रहे हो, ऐसी बात है, तो फिर ये इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है सरकार की ओर से किसी भी सोशल मीडिया से।
अब हमें ये मानना पड़ेगा कि सरकार इंफॉर्मेशन मांगेगी तो इन्हीं कारणों को दिखाकर मांगेगी, ये हमारी धारणा होगी, ऐसा ना भी हो सकता है। तीसरी बात, ये जो नियम है 4(2), इसमें यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने ये मैसेज भेजा है उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन सरकार को चाहिए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, और किसी और यूजर्स की और व्यक्तियों की भी इंफॉर्मेशन सरकार को देनी नहीं है। अच्छी बात है। चौथी बात यह है कि मान लो कि यह मैसेज भारतीय नागरिक ने पहली बार नहीं किया, किसी और ने किया। किसी और मतलब कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहने वाली व्यक्ति है जिसने ये मैसेज पहली बार भेजा भारतीय नागरिक को, और फिर भारतीय नागरिक ने और लोगों को भेजा। ठीक है, व्हाट्सएप ने यह खोज निकाला कि भारतीय नागरिक ने यह पहली बार नहीं भेजा, पहली बार कोई और नागरिक है, चाहे वो अमेरिका में रहता है या जापान में रहता है या पाकिस्तान में रहता है या नेपाल में रहता है, वो वहां का नागरिक है, उसने ये मैसेज तैयार किया है, पहली बार भेजा है, वो भारतीय नागरिक के पास आया है। तो सरकार ये कहेगी कि अच्छा बताइए आप दूसरा जिसको ये मिला वो कौन है। तो अगर आप रहते हैं मान लीजिए जापान में, आपने कुछ ऐसा मैसेज किया, मेरे पास आया पहली बार और मैंने किसी को फॉरवर्ड किया, तो मेरा नाम मांगेगी सरकार और कहेगी कि इसके सामने हम कुछ कार्रवाई करेंगे। तो ये इंडियन सिटीजन जिसने पहली बार कोई फॉरेन मैसेज, फॉरेन ओरिजिनेटेड मैसेज भेजा, तो वो इंडियन सिटीजन जो दूसरी बार भेज रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन गिना जाएगा। और सरकार ने इस नियमों में यह भी कहा है कि कंपनी को 72 कलाक में, मतलब 3 दिन में, जो ओरिजिनेटर है उसका नाम सरकार को देना पड़ेगा। अब ये नियम है, इसका व्यवहार में क्या अर्थ होता है वो हमें समझना चाहिए। पहला अर्थ यह होगा कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की कोई भी पॉलिसी, कोई भी मेजर्स, कोई भी बजट, कोई भी कार्यक्रम, योजना, परियोजना, ऑर्डर, इसका सर्कुलर, नियम, विनियम, रेगुलेशंस, या किसी प्रधान के, प्रधानमंत्री या किसी प्रधान के मंत्री के भाषण, या उसकी कोई राइटिंग, या इसके टीवी या न्यूज़पेपर को दी हुई इंटरव्यू, इसके विरोध में या इसको क्रिटिसाइज करते हुए कुछ भी लिखेगा मैसेज में, या कोई कार्टून बनाएगा, या कोई वीडियो तैयार करेगा, या किसी सिंबल को दोहरेगा, उसमें डेपिक्ट करेगा, या ऐसा कुछ भी मैसेज में करेगा, तो सरकार ये कह सकती है कि हमें इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है और हमें यह जानना है कि ये सबसे पहला मैसेज किसने भेजा है। दूसरी बात, जिसने पहली बार मैसेज भेजा है सरकार उसको पकड़ना चाहती है और सरकार उसे सजा करना चाहती है, ये बात तय है। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार अगर थोड़े लोगों को ऐसे को पकड़ेगी और उसको सजा करेगी किसी भी तरह, चाहे वो कोर्ट से हो या किसी और तरीके से हो, क्योंकि आजकल और तरीके भी हो रहे हैं, तो बाकी के जो सब नागरिक हैं उसको डर लगेगा। मान लो कि आपने कोई मैसेज भेजा जो सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है और आपको पकड़ा गया, व्हाट्सएप ने आपका नाम दिया सरकार को, आपको पकड़ा गया और फिर आज आपके सामने सेडिशन लॉ लगाया गया कि ये देशद्रोही व्यक्ति है जो सरकार की इसमें देशद्रोह है, वो सरकार इंटरप्रेट करेगी, फिर कोर्ट जब चाहे तब करेगी, लेकिन आपको सताया जाएगा इस तरीके से। तो जो बाकी के सभी नागरिक हैं वो डर जाएंगे। तो ये जो
डराने का, डर फैलाने का जो पॉलिटिक्स है वो कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक है, ये अलोकतांत्रिक है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तीसरी बात, जिसने भी पहले मैसेज भेजा है उस मैसेज से देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता खतरे में है या पब्लिक ऑर्डर खतरे में है, ऐसा सरकार कह सकती है। अब ये पहले कहे, आप समझिए इस क्रोनोलॉजी को, पहले कहेगी किसको, व्हाट्सएप को या किसी और सोशल मीडिया को कि आप हमें नाम दीजिए, क्योंकि इस मैसेज से पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, देश की संप्रभुता को खतरा है, या भारत के जो जापान के साथ संबंध है वो बिगड़ सकते हैं, इसलिए आप ओरिजिनेटर का नाम दीजिए। या फिर ये कहेगी कि भारतीय स्टेट के लिए, भारतीय राज्य के सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब मुझे समझ में नहीं आता ऐसा संविधान में भी क्यों लिखा गया है, मेरी समझ से बाहर है कि भैया मैं कोई मैसेज भेजूं और इसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ जाए, एक छोटा सा नागरिक हूं मैं, या भारत या साउथ अफ्रीका के संबंध बिगड़ जाए, या जिम्बाब्वे के साथ हमारे जो संबंध है वो बिगड़ जाए, या मालदीव के साथ हमारे जो संबंध है वो बिगड़ जाए, ऐसा कोई मैसेज मैं लिखूं, ऐसा कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा मैं। लेकिन सरकार ये कह सकती है कि देखिए हेमंत कुमार शाह ने जो मैसेज लिखा है इसकी वजह से भारत के जमैका के साथ जो संबंध है, या मालदीव के साथ जो संबंध है, या थाईलैंड के साथ जो संबंध है वो बिगड़ सकते हैं, इसलिए हमें ये नाम चाहिए कि ये किसने लिखा है। ये फिर व्हाट्सएप कहेगी कि ये हेमंत कुमार शाह ने लिखा है या किसी और ने लिखा है, तो ये हो सकता है। इसमें याद रखिए आप, संप्रभुता की बात नहीं हो सकती, स्टेट की सिक्योरिटी की बात नहीं हो सकती, इसमें पब्लिक ऑर्डर की बात नहीं हो सकती। सिर्फ ये कहेगी सरकार कि भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ रहे हैं, या भारत या स्पेन के या ब्राजील के संबंध बिगड़ रहे हैं, इसलिए हमें इस मैसेज को किसने पहली बार भेजा है उसका नाम चाहिए। ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। चौथा मामला ये है कि सरकार ये भी कह सकती है कंपनी को कि जिसने भी ये पहला मैसेज पहुंचा है इससे भले ही किसको हानि नुकसान ना पहुंचता हो, लेकिन वो किसी और व्यक्ति को इंसाइट कर रही है। मतलब मैं मैसेज भेजता हूं तो आपको गुनाह करने के लिए मैं इंसाइट कर रहा हूं, इसलिए सरकार को आपका नाम चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। ये जो नियम है, पांचवा मुद्दा, ये जो नियम है वो नियम सोशल मीडिया से सूचना प्राप्त करने की व्यापक सत्ता सरकार को देते हैं, और इसकी वजह से जो मैंने आगे बातें कही, इसकी वजह से हमारी जो व्यक्तिगत गोपनीयता है इसके अधिकार को भंग हो रहा है, अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जो सरकार मांगती है वो सूचना किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को देनी पड़ेगी। अब सवाल इस बात का है कि मैंने कोई मैसेज भेजा, या कोई फोटो भेजा, या कोई वीडियो भेजा, या कोई कार्टून भेजा, वो किसका सर्जन है, किसका क्रिएशन है? वो तो मेरा क्रिएशन है, तो मैं उसका मालिक हूं, मैं नागरिक हूं। लेकिन नागरिक उसका मालिक नहीं होगा। मालिक कैसे बदल जाएगा? कंपनी मालिक हो जाएगी। तो मेरी मर्जी के खिलाफ
सोशल मीडिया कंपनी वो सरकार को सूचना दे देगी। तो व्हाट्सएप ने अपनी पिटीशन में यह भी कहा है और कई एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ये मैसेज पैदा करने वाला जो व्यक्ति है वो सचमुच में मैसेज का मालिक है। व्हाट्सएप तो सिर्फ मैसेंजर है, वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाने वाली कंपनी है, वो मीडिया है। ये दलील बहुत महत्व की दलील है। दूसरी एक बात, छठा मुद्दा, अंतिम मुद्दा, व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि जो भी मैसेज भेजने वाली व्यक्ति है उसके मैसेज को खोज निकालने के लिए, उसका नाम खोज निकालने के लिए, मतलब मैंने कोई मैसेज भेजा है, 5-10 लाख लोगों को जा पहुंचा है, अब मैसेज कहां से पैदा हुआ पहली बार, उसकी छानबीन करने के लिए व्हाट्सएप कहती है कि हमें ये जो मैसेज जिन जिन व्यक्तियों के पास गया, 5 लाख लोगों के पास या 5 करोड़ लोगों के पास, तो उन सबके मैसेज हमें देखने पड़ेंगे। अगर एक व्यक्ति का नाम ढूंढने के लिए 5 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को हमें ये गोपनीयता का जो अधिकार है उसके उल्लंघन की में लाना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि एक नाम ढूंढने के लिए 5-10 करोड़ लोगों की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा और इसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ये का उल्लंघन हो जाएगा। ये व्हाट्सएप ने जो पिटीशन की है इसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या हमारे गोपनीयता के अधिकार को लेकर हुई है। अब बात तो यह है कि 2017 में एक केस हुआ और वो केस पुत्तास्वामी केस करके बहुत जाना माना केस है और 24 अगस्त 2017 को हमारे जो सर्वोच्च अदालत के न्यायमूर्ति हैं उन्होंने संपूर्ण सहमति से, मतलब बाय कंसेंसस, एक ऑर्डर पास किया, मतलब एक जजमेंट दिया जिसमें यह कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। अब आप फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 को संविधान में पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि उसमें कोई राइट टू प्राइवेसी ऐसा कोई शब्द है ही। तो इसमें यह बात है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2017 में यह कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत आता है। मतलब सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन किया कि राइट टू प्राइवेसी इज इनहेरेंट टू आर्टिकल 14, 19 एंड 21। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, इसमें ये 3 बातें उसने कही। एक लीगालिटी, दूसरी नेसेसिटी और तीसरी बात है प्रोपोर्शनलिटी। ये लीगालिटी मतलब कानूनी बात, नेसेसिटी मतलब जरूरत, आवश्यकता, और प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है प्रमाण भानता। ये 3 बातों को लेकर जिसमें हम जो आर्टिकल 19(2) है जिसमें यह कहा गया है कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, फ्रीडम के जो राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब संपूर्ण निरपेक्ष नहीं है, कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे ही। जैसे कि मैंने कहा आपको कि मैं आपको गाली दूं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं आपको बदनाम कर दूं, डिफेम कर दूं तो वो भी नहीं है। मतलब ऐसे कानून बनाए जाएंगे, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लाए जाएंगे कि जिसकी वजह से आप ये
रिस्ट्रिक्शंस के तहत रहेंगे आपके अधिकार। लेकिन महत्व की बात यह है कि ये रिस्ट्रिक्शंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि अधिकार रहे ही नहीं। ये बात, ये 2017 में जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट ने में ये कही गई है। 547 पन्नों का ये जजमेंट है, जिसमें 4 न्यायमूर्तियों ने अभिप्राय व्यक्त किया और 5 न्यायमूर्तियों ने दूसरा अभिप्राय व्यक्त किया। लेकिन सभी लोगों ने, मतलब सभी 9 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले न्यायमूर्ति ने जो ऑर्डर किया है, जो जजमेंट दिया है, उसमें सभी 9 न्यायमूर्तियों ने अपने दस्तखत किए हैं। ये महत्व की बात है, जिसमें यह कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। बहुत सारी बातें ये जजमेंट के बारे में हो सकती है, लेकिन 3 बात हमें समझनी चाहिए। एक है लीगालिटी। लीगालिटी का मतलब यह है कि अगर सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालना चाहती है तो वो रिस्ट्रिक्शंस कानूनन होने चाहिए। मतलब इसके लिए कानून होना चाहिए। हाँ, है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कानून के तहत नियम बनाए गए हैं, मतलब लीगालिटी हो गई। अब दूसरी बात वो महत्व की है, नेसेसिटी। जरूरत है क्या? तो जरूरत कैसे नापी जाएगी? वो जरूरत जो रिस्ट्रिक्शंस में लिखी गई है, स्टेट सिक्योरिटी है, हमारी एकता और अखंडता के खिलाफ है कुछ मैसेज, या तो फिर वो हमारे किसी के साथ जो संबंध है वो क्या बिगड़ सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये नेसेसिटी है। और तीसरी बात है वो प्रोपोर्शनैलिटी है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का मामला है वो यूरोपियन प्रिंसिपल है, जिसके बारे में काफी कुछ इस जजमेंट में लिखा गया है। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी का एक मतलब यह हो गया कि सरकार कोई एकदम फालतू कारण देके या कोई एकदम क्षुद्र कारण देके या निकम्मे कारण देके व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये इसका मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी का। तो ये जो कानून है इसका मतलब ये हो गया कि सरकार किसी कानून के बिना गोपनीयता के अधिकार में इंटरफियर, दखल अंदाजी नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति मैसेज या ऐसी कोई भी सूचना सोशल मीडिया की कंपनियों के पास मांगा जाए, कोई भी व्यक्ति के नाम को लेके, तो वो सरकार तभी मांगेगी जब वो एकदम नियत जरूरी है, आवश्यक है। अगर वो आवश्यक ही नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार किसी को दबाना चाहती है। लेकिन यह आवश्यकता या अनावश्यकता कौन तय करेगा? तो ये जो कानून लाए गए हैं इसमें तो ये लिखा गया है कि सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया की कंपनी को हुक्म दे सकती है कि आप हमें ओरिजिनेटर का नाम बताइए। तो यहां बात यह है कि जिस उद्देश्य से ये सूचना मांगी जाए सरकार से कंपनी के पास, उसी उद्देश्य को लेकर वो फेयरनेस होनी चाहिए। मतलब वो उद्देश्य सच में वो उद्देश्य होना चाहिए जो रिस्ट्रिक्शंस के मामलों में लिखा गया है। तीसरी बात यह है कि जितनी जरूरी है उतनी ही सूचना मांगी जानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और चौथी बात यह है कि सरकार जिस व्यक्ति के मैसेज या और कुछ की माहिती या सूचना मांगेगी तो वो कानूनन होनी चाहिए। मतलब इसमें जो भी प्रोसीजर लिखी हुई है उस प्रोसीजर के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। और
अंत में एक बात उसमें यह भी है कि एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। मतलब जैसे सरकार किसी के व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती, वैसे कोई और व्यक्ति भी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। अलग अलग 9 जो न्यायमूर्ति इसमें रहे हैं, उसमें अलग अलग न्यायमूर्ति ने अपने मंतव्य इसमें दिए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इसके ऑर्डर पर सभी लोगों ने साइन किया और इसका मतलब यह हो गया कि राइट टू प्राइवेसी हैज नाउ बिकम अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। लेकिन मैं एक दो काल्पनिक किस्से आपके सामने रखूंगा। मान लो कि एक महिला पत्रकार है और वो दूसरे पत्रकार मित्र को प्यार करती है और वो प्यार वाला मैसेज भेजती रहती है। अब वो महिला पत्रकार ऐसी है कि जो सरकार की बहुत आलोचना कर रही है और वो अखबारों में लिख रही है, सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना कर रही है। इसलिए सरकार को ये लगता है कि ये महिला पत्रकार के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए, तो फिर सरकार व्हाट्सएप को या किसी और सोशल मीडिया कंपनी को यह हुक्म देगी कि सरकार की या तो सरकार के खिलाफ एक साजिश हो रही है इस महिला पत्रकार के हिसाब से, तो फिर हमें इस महिला पत्रकार के मैसेज देखना है। अब सुनिए जरा, कोई भी मैसेज ऐसा नहीं है जो महिला पत्रकार ने सरकार के खिलाफ लिखा है, या ऐसा कोई मैसेज कि जिसकी वजह से उस महिला का नाम आ जाए, ओरिजिनेटर मैसेज भेजने वाला, ऐसा नहीं है इसमें। बस वो चाहती है सरकार कि इस महिला के मैसेज को हमें देखना है, क्योंकि हमें डर है कि ये महिला पत्रकार किसी टेररिस्ट के साथ संबंध रखती है। अब वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन सरकार एक बहाना ढूंढ रही है। फिर क्या करेगी? सारे मैसेज व्हाट्सएप कंपनी देखेगी, सरकार कहेगी कि हमें सारे मैसेज दीजिए, सारे मैसेज दे देंगे व्हाट्सएप वाले। उसमें वो प्यार वाले मैसेज भी है जो उस महिला पत्रकार ने अपने प्रेमी को लिखे हैं। फिर सरकार उस महिला पत्रकार को डराएगी, देखिए अगर तू हमारे खिलाफ लिखती रहेगी तो मैं तेरे ये जो सारे मैसेज है वो पब्लिक कर दूंगा, तू सरकार के खिलाफ लिखना बंद कर दे। तो ये जो प्रेम संबंध है उसका उपयोग सरकार कर सकती है। ये मैं एक काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा एक काल्पनिक उदाहरण दीजिए। एक व्यक्ति है जो दूसरी व्यक्ति के फोन को हैक करता है। इसमें सरकार नहीं है। एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के फोन को हैक करता है या किसी को हैक करने के लिए कहता है। वो व्यक्ति हैक करने वाली व्यक्ति को पैसा भी दे सकती है क्योंकि वो काम करवाना है। फोन हैक करने के लिए पैसा देगी या ना भी दे। फोन हैक करने वाली व्यक्ति या कंपनी वो फोन हैक करके उस व्यक्ति की सारे मैसेज, सारी बातचीत रिकॉर्ड कर देती है। सारे मैसेज, फोटो, वीडियो सब हैक करके वो देखती है और भी वो सारा इकट्ठा करके उस बंदे को देती है जिस बंदे ने उसको ऑर्डर दिया था या पैसा देने वाला था। अब वो व्यक्ति जिसने पैसा दिया या ना दिया, उस इंफॉर्मेशन का उपयोग उस व्यक्ति के खिलाफ करेगी और कहेगी कि
तू ये काम कर, इस प्रकार से व्यवहार कर, नहीं तो ये मैं तेरी सारी बातें जो इसमें इकट्ठा हुई है मुझे मेरे पास है वो पब्लिक कर दूंगा, वो सबको बता दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो व्यक्ति है वो डर जाएगी और फिर जो हैक करने वाली या कराने वाली जो व्यक्ति है उसके सब्जुगेशन में आ जाएगी, वो उसके गुलाम बन जाएगी। ये एक नागरिक भी दूसरी नागरिक की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो साइबर क्राइम है। अगर मेरा कुछ ऐसा हुआ तो मैं साइबर क्राइम में जाऊंगा और कहूंगा कि मेरा फोन हैक हो गया है, आप जरा उस हैकर को ढूंढ निकालिए और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए अंडर दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हो सकता है कानून कार्रवाई हो सकती है हैकर के पीछे, क्योंकि वो मेरी इंफॉर्मेशन ले रहा है। सवाल इस बात का है कि सरकार खुद इंफॉर्मेशन मांगेगी तो कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि वो सरकार स्टेट की सिक्योरिटी के लिए मांग रही है, भारत की एकता और अखंडता के लिए मांग रही है। सरकार ये कह रही है कि ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकता। बात सच है, एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये रिस्ट्रिक्शंस ऐसे नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से इस देश के संविधान में हमारे नागरिकों के जो अधिकार लिखे हुए हैं वे ही खत्म हो जाए। तो डर इस बात का है कि हमारे गोपनीयता के जो अधिकार है वो सारे खत्म हो सकते हैं। बहुत सारी बातें, ये जो पुत्तास्वामी केस है उसमें जो जजमेंट आया है इसके बारे में कही जा सकती है, लेकिन काफी समय हुआ है। मैं यहां अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर से मैं आप सबसे आह्वान कर रहा हूं कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हमें जागना पड़ेगा। अगर हम नहीं जागेंगे तो भविष्य की पीढ़ियां हमें गाली देगी कि आप सब जिंदा थे, आपने किया क्या। तो आओ हम सब मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा करने की बात करें और सरकार के खिलाफ जो भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर वो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है तो इसके खिलाफ लड़ना वो हमारा फर्ज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें मनुष्य की तरह जीना है तो हमारे अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। आप सब ने मुझे बहुत शांति से सुना और मुझे मूवमेंट ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेसी ने यह मौका दिया आप सबसे बात करने के लिए, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं। धन्यवाद।